اب امام حسین مکہ میں سکونت پذیر ہو گئے ہیں، وہاں پر گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ چند روز گزرے تھے کہ کوفہ سے خط آنے شروع ہو گئے۔ کوفیوں نے اپنے خط میں لکھا، امام ہمیں تو یہ لگا کہ آپ بھی یزید کی بیعت کر لیں گے، جب ہم نے سنا کہ ملک شام اور دمشق کے لوگ یزید کی بیعت کر چکے ہیں اور کوفہ کے بھی بہت سارے افراد اب بیعت کر لیے ہیں یزید کی، ہمیں لگا کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ بھی بیعت کر چکے ہوں گے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ آپ مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ آ چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت سے انکار کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ بیعت کے لائق نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا امیر المومنین کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ امام آپ کوفہ تشریف لائیں ہماری رہنمائی کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید ہم پر جو اپنا دین متین کو اپنے من مافک وہ نافذ کر رہا ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس میں ملوث ہو جائیں اور ہم گنہگاروں کی فہرست میں آ جائیں۔ جب ان خطوط کے بارے میں صحابہ کرام کی اولادوں کو یہ خبر ملی نا کہ کوفہ سے خط آ رہے ہیں اور امام حسین اب مذبذب میں زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ مکہ میں رہیں کہ کوفہ جائیں، عبد الرحمن بن ابو بکر تشریف لاتے ہیں امام حسین کے پاس، تو کہیں عبداللہ ابن زبیر تشریف لاتے ہیں، کہیں عبداللہ ابن عمر تشریف لاتے ہیں، کہیں عبداللہ ابن عباس تشریف لاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے یہ اولاد امام حسین کو سمجھاتے ہیں، امام کہیں آپ کا یہ ارادہ تو نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں؟ تو کوفہ کے تاریخ یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کوفی دغا باز ہوئے ہیں۔ کوفہ کے لوگوں نے آپ کے والد گرامی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شہید کیا ہے۔ یہی کوفی تھے جو آپ کے بھائی جان امام حسن کے ساتھ انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا تھا آپ بخوبی جانتے ہیں، اور کوفہ کی دغا بازی مشہور ہے۔ امام اگر آپ سوچ رہے ہیں کوفہ جانے کے بارے میں تو آپ اسے ترک کر دیں تو بہتر ہوگا۔ امام نے صحابہ کرام کی اولادوں کی بات کو سنا اور پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں کوفہ کے بارے میں اب یہ ارادہ نہیں کروں گا، میرا ارادہ تو بن رہا تھا۔ پھر اور بھی خطوط آئے، لیکن اس میں خط ایسا آیا کہ امام اگر آپ کوفہ تشریف نہیں لاتے ہیں، اس خط نے امام کو مجبور کر دیا ہے کوفہ جانے کے لیے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ امام اگر آپ کوفہ تشریف نہیں لاتے ہیں نا، تو اگر ہم پر یزید اپنے دین کو نافذ کرتا ہے اور ہم اس میں اگر ملوث ہو جاتے ہیں مجبوراً، اور کل ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم دین متین کو ترک کیوں کیے، تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے اللہ کے رسول کے نواسے کو اپنی رہنمائی کے لیے کوفہ بلایا تھا، لیکن وہ مکہ میں موجود تھے، وہ وہاں سے کوفہ آنا بہتر نہیں سمجھے۔ امام حسین نے جب اس خط کو پڑھا نا، امام حسین بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ آپ نے گھر کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور سب کے مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ چلیں امام آپ نہ جائیں کوفہ، بلکہ ایک اپنا مشیر، اپنا ایلچی، اپنا سفیر بنا کر بھیجیں۔ امام حسین نے مسلم بن عقیل کو بلایا، مسلم بن عقیل تمہیں کوفہ جانا ہے، یہ میں خط کوفیوں کے نام لکھ رہا ہوں، اس خط کو لے جا کر تم وہاں پر انہیں سنانا اور کوفہ کے جو حالات ہوں گے اس سے ہمیں خبر کرنا۔ حضرت مسلم بن عقیل اب مکہ سے روانہ ہو رہے ہیں، تب تک ان کے دونوں بچے تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں بابا جان ہم مکہ میں آپ کے بغیر نہیں رہیں گے، ہمیں بھی ساتھ لے کر چلیں۔ روایتوں میں تو حضرت زینب کے دونوں بچوں کے نام مشہور ہیں، اون و محمد، لیکن کچھ کتابوں میں مسلم بن عقیل کے بچوں کے نام بھی اون و محمد کے نام سے مشہور ہیں۔ امام حسین نے کہا بچوں کو ساتھ لے کر جاؤ، یہ بہتر رہے گا۔ مسلم بن عقیل اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں، اور جب کوفہ میں آپ داخل ہوتے ہیں نا تو وہاں پر آپ کا شاندار ویلکم کیا جاتا ہے، سواگت کیا جاتا ہے، استقبال کیا جاتا ہے۔ آپ مختار بن ابو عبید کے گھر پر تشریف رکھتے ہیں، اور وہاں جب لوگوں کو یہ خبر ملی کہ امام حسین کے بھائی مسلم بن عقیل ان کے مشیر بن کر تشریف لائے ہیں، تو لوگوں کی کثیر تعداد مختار بن ابی عبید کے گھر پر آئی، اور
वहाँ पर मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन के ख़त को पढ़कर सुनाया है ना, तो लोग बैयत करने लगे मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन के नाम की। और ये बैयत का तादाद इस कदर बढ़ा कि 18,000 कूफियों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैयत इमाम हुसैन के नाम की कर दी है। अब इमाम मुस्लिम बिन अकील देखते हैं कि कूफे का माहौल तो बड़ा साजगार है, बड़ा इमाम हुसैन की मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुस्लिम बिन अकील ने ख़त लिखा, इमाम कूफा तशरीफ़ लाएं, खुशगवार माहौल है, यहाँ आपके चाहने वाले हैं, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों की तादाद मौजूद है। अभी तक मेरे हाथ पर 18,000 कूफियों ने आपके नाम की बैत कर रखी है, इमाम आप तशरीफ़ लाएं। और इधर इमाम हुसैन के नाम पर जो ख़त मुस्लिम बिन अकील ने लिखा था, जब वो ख़त कूफा से निकलता है, अब यहाँ पर हालात में चेंजिंग आ जाती है। नुमान बिन बशीर जो कूफा के गवर्नर थे, अहले बैत से मोहब्बत वो रखते थे, अहले बैत से उनका ताल्लुक़ बड़ा गहरा था। उन्होंने यजीद को ख़त लिखा, यजीद यहाँ मुस्लिम बिन अकील आए हैं और उनके हाथ पर कूफियों ने इमाम हुसैन के नाम पर बैयत कर लिया है, अब तुम बताओ मैं उनके साथ क्या करूँ। मेरी तो राय यही है कि नरमी के साथ तो उनसे बर्ताव किया जाए, उनसे बात हम करें, बात सुलह तक पहुँच जाए तो उन्हें मैं कूफा से रुखसत कर दूंगा, वो मक्का तशरीफ़ ले जाएंगे। लेकिन जब यजीद के हमनमा, जो यजीद के मानने वाले थे, वो कूफा में तशरीफ़ रखते थे, उन्होंने जब नुमान बिन बशीर के ये एक सुलहनामा और जो मोहब्बत का तरीका देखा ना, और उस ख़त को जब उन्होंने पढ़ा ना, तो उन्हें गुस्सा आया कि नुमान बिन बशीर ये क्या कर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ मुस्लिम बिन अकील ये बगावत कर रहे हैं, उनके नाम पर लोग बैयत कर रहे हैं, और यहाँ पर वो अमीरुल मोमिनीन से उनके अपने मुस्लिम बिन अकील की सिफारिश में वो ख़त लिख रहे हैं, उनके हमदर्दी में वो ख़त लिख रहे हैं। यजीद के मानने वालों ने फ़ौरन ख़त लिखा, ऐ यजीद, अगर यहाँ पर कोई दूसरा गवर्नर सख्त नहीं आता है ना, तो पूरा कूफा इमाम हुसैन का हो जाएगा। यजीद को जब ये ख़बर मिली, उसने इब्ने ज़ियाद को ख़त लिखा, फ़ौरन कूफा जाओ और वहाँ पर गवर्नरी के पद को तुम संभालो। अब जब ये इब्ने ज़ियाद कूफा में दाखिल हुआ ना, लोगों के लगा कि कहीं इमाम हुसैन तो नहीं आ रहे हैं ना, लोग इस्तकबाल करने लगे, नारा लगाने लगे, मरहबन बिका या इब्ने रसूलुल्लाह, वो कहने लगे। जब इब्ने ज़ियाद को लोगों ने देखा कि वो तो गवर्नर हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लोगों को ये खदशा हुआ, उन्हें सुबह हुआ कि ये इमाम हुसैन नहीं, ये कोई और है। नुमान बिन बशीर को जब ये इल्म हुआ कि इमाम हुसैन गवर्नर हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, चूँकि वो इमाम हुसैन नहीं बल्कि इब्ने ज़ियाद था, और जब नुमान बिन बशीर को ये इल्म हुआ तो फ़ौरन दरवाजे को बंद कर देते, कहते हैं इमाम मैं आपको पनाह नहीं दे सकता, हालात बड़ा बदतर है, आप यहाँ से निकल जाएं। इब्ने ज़ियाद आहिस्ते से कहता है कि ऐ नुमान बिन बशीर, मैं इब्ने ज़ियाद हूँ, दरवाज़ा खोलो, यजीद ने मुझे हाकिम बनाया है कूफा का। नुमान बिन बशीर दरवाजे को खोलते हैं, इब्ने ज़ियाद गवर्नर हाउस में दाखिल होता है। दूसरे दिन उसने कूफा के जो मुअज़्ज़ज़ हजरात थे, जिनका एक रसूख था कूफा पर, उन्हें बुलाया और उनके सामने उसने तकरीर किया। उसने कहा कि देखो, अमीरुल मोमिनीन यजीद की मुखालिफत मुस्लिम बिन अकील कर रहे हैं, अगर उन्हें कोई पनाह देता है ना, तो मैं उनके साथ सख्ती का बर्ताव करूँगा, मैं उन्हें कत्ल कर दूँगा। इब्ने ज़ियाद इस तरह से लोगों को डराया, धमकाया और उन्हें इनाम का लालच भी दिया। अब जब मुस्लिम बिन अकील को ये खबर मिल गई कि इब्ने ज़ियाद यहाँ पर तशरीफ़ ला चुका है और उसने अपने बयान से लोगों को अपने तरफ मुतवज्जा कर लिया है, तो अब मुस्लिम बिन अकील को ये लगा कि कोई मख्फी जगह पर, कोई पोशीदा जगह पर वो तशरीफ़ ले जाए। तो वो मुख्तार बिन अबू उबैद के घर से निकलते हैं और हानी बिन उर्वा के घर पर तशरीफ़ ले जाते हैं। इधर इब्ने ज़ियाद को यह खबर मिल गई कि मुस्लिम
बिन अकील हानी बिन उर्वा के घर पर हैं। हानी बिन उर्वा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब ये खबर कूफा के लोगों को मिली कि हानी बिन उर्वा को इब्ने ज़ियाद ने कत्ल कर दिया है, तो अब मुस्लिम बिन अकील कूफा के लोगों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें कहते हैं कि चलो गवर्नर हाउस का हम घेराव करते हैं। किताबों में आया है कि 4-5 हज़ार लोग जो मुस्लिम बिन अकील के साथ चलते हैं और मुस्लिम बिन अकील जो है कि कूफा के गवर्नर हाउस का घेराव करते हैं। आप मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे और इधर इब्ने ज़ियाद जो उसमें से जो उसके मानने वाले हैं, जानने वाले थे ना, उन्हें बुलाता है, उन्हें समझाता है कि लोगों को लालच दो और लोगों को कहो कि वो अपने घर चले जाएं, वो हमसे जंग नहीं कर पाएंगे, हम लाहौर लश्कर के साथ उन पर हमला करेंगे, उनके ख़ानदान को निस्तो नाबूद कर देंगे। जब ये डर और ये खौफ इब्ने ज़ियाद ने कूफा के लोगों के दिलों में डाला ना, तो कूफा के जामा मस्जिद में जब मुस्लिम बिन अकील दाएं जानिब सलाम फेरते हैं और बाएं जानिब सलाम फेरते हैं, तो सिर्फ मुस्लिम बिन अकील के साथ 30 से 35 लोग जामा मस्जिद में मौजूद थे। इस कदर दगाबाजी मुस्लिम बिन अकील के साथ कूफियों ने किया है। अब मुस्लिम बिन अकील को ये लगा कि अब मैं बच नहीं सकता हूँ। वो कूफा की गलियों में अकेले टहल रहे हैं, सब लोग उनको छोड़ दिए। अब जब वहाँ पर वो कूफा की गलियों में टहल रहे थे तो तोआ नाम की एक औरत थी, उसके घर पर आप तशरीफ़ ले जाते हैं, दरवाजे पर आप बैठे हैं। आपने कहा कि ए बूढ़ी माँ पानी दे दो, प्यास लगी है। तोआ ने पानी दिया, कहा अब अपने दरवाजे आप अब अपने घर चले जाए। मुस्लिम बिन अकील ने कहा कूफा में मेरा कोई घर नहीं है, मैं यहाँ पर बेयार व मददगार हूँ, कूफा के लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ, अहले बैत से ताल्लुक़ रखता हूँ। तोआ नाम की औरत ने जब अहले बैत का नाम सुना ना, तो वो अपने घर में मुस्लिम बिन अकील को रुपोश कर देती है। अब इधर इब्ने ज़ियाद के जो लोग थे उन्होंने ये खबर लगा लिया कि तोआ के घर पर मुस्लिम बिन अकील मौजूद थे। 70 लोग गए और तलवार के साथ मुस्लिम बिन अकील को जो है कि गिरफ्तार करने के लिए मुस्लिम बिन अकील भी तलवार से मुकाबला करते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुस्लिम बिन अकील को इब्ने ज़ियाद गवर्नर हाउस में लाकर और फिर उनसे बहसो मुबाहिसे के बाद अखीर में उन्हें कत्ल कर देता है। ये खबर उधर इमाम हुसैन अब कूफा पहुँचने वाले थे। इमाम हुसैन को जब ये खबर मिली है ना, इमाम हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए हैं। इमाम हुसैन मुस्लिम बिन अकील के बच्ची के सर पर हाथ रखते वो बच्ची कहती है इमाम हुसैन, ए चचा जान, ए बड़े अब्बू, आप ये मेरे सर पर हाथ रख रहे हैं, क्या मैं यतीम हो गई हूँ? ये तो यतीमों के सर पे हाथ रखा जाता है। इमाम हुसैन कहते हैं कि बेटी तू यतीम हो गई है, तेरे बाप को कूफा के लोगों ने शहीद कर दिया है। अब अहले बैत में सब लोग रोने लगते हैं, आहो बुका करते हैं। इमाम हुसैन ने सबको तसल्ली दिया है और सब खामोश हो गए। अब इमाम हुसैन फिर भी पीछे नहीं हटते हैं, वो कूफा की तरफ रवाना हुए।